Matthews, Joint Secretary, Rural Development Department, Government of India. जो इलाका बहुत पसमानदा, बहुत गरीब इलाका है, बेशक इस इलाके की अपनी खूबियाँ भी हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि इस इलाके में बहुत ही इक़्तिसादी मुश्किलात लोगों को दरपेश हैं। इसीलिए हमने इस इलाके को एक पायलट ब्लॉक में रखते हुए हमने ये कहा कि पहले इसी ब्लॉक से शुरुआत की जाए जहाँ ज़्यादा गुर्बत नादारी हो, और ताकि लोगों को जो हमारा ये स्कीम है इसको बाज़ाब्ता तौर पर बजट के बाद उनसे कहा गया कि ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ा सा भी है, एक रुपया बचाओ। एक रुपया बचाया। हर मीटिंग ग्रुप में, समूह में, ग्रुप में 4 बार मोहम्मद यासीन साहब, फारूक पीर साहब, दिल्ली से आए हुए मेरे सहयोगी अधिकारीगण, खान साहब, ब्लॉक के कितने सारे बहनें और भाइयों, मरकजी सरकार की ओर से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जम्मू और कश्मीर रियासत में। Vijay Kumar? Sir, yes sir. You spent 2 minutes with her, talk to her, what she wants to do. You spend some time with her. Sir, good morning sir. I just went off. I got some pain. This is Appor. Appor is an old name. What is it? Good morning sir. India can. It should be called J&K can. Hello sir. क्या कर रहा है? शिक्षा मीडिया भी कितना है अभी? कुछ नहीं अच्छा हो, पर यहाँ तो हॉस्टल, ये तो गेस्ट हाउस हो गया। तो ये तो मेन कंपनी है। ऑडिटोरियम Now let's take the big picture. We have done 5,200 trained and placed, including today's function. We don't have that breakup. Okay, fine. Not a problem. So 5,200 trained and placed. This is broken up into 3,600 before the meeting. तो उन्होंने मीटिंग थी, मेरे पास पता है पब्लिक मीटिंग क्या जरा तो सभी बढ़ गए। अस्सलाम वालेकुम और आप सबका खुशामदीद। फंक्शन में बैठे हैं और मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए उसकी सर्टिफिकेट्स और उसके साथ साथ उनकी जम्मू और कश्मीर एरिया हिमायत representatives from various PRAs, friends from media, my colleagues and friends. Good morning to all of you. Morning. Friends, as you know, that I have assembled here in connection with the Himayat graduation function to give placement letters to the trainees covered under Himayat of the state with us, who have very kindly acceded to our request and be a part of today's of the fact that how concerned you are about the problem of unemployment in the state, that you and your government have reposed a lot of faith and trust in JKEDI by giving us more and more responsibility in the face of the people, in the system of the institutions of the government.
and then contribute in holding these functions. We are extremely thankful to you, sir, for taking keen interest in addressing that. At times you even take security risks by visiting the lot of most downtrodden and deprived sections of the society at large. You are really a true friend. This function is a great encouragement for us, for which we are grateful to you, sir. I also welcome our guest function and commitment has been appreciated even by Shoaib Sultan Khan. I also welcome my friends from PIAs like IFS, DB Tech, India Can, CAP Foundation, function. Above all, Director JKEDI, Dr. Marisa, Director Rural Development, Mir Altaf Saab, Mission Director NRM, Rufail Mulusa, other dignitaries on rice, ladies and gentlemen. National Rural Livelihood Mission has been rolled out in the state of Jammu and Kashmir through the J&K State Rural Livelihood Society. The mission has been named as Me. Salam. भाई सुनो, बहन सुनो, गरीब दुखी सब सुनो, भाई सुनो, बहन सुनो, गरीब दुखी सब सुनो, हम सब मिल सकते, अच्छा काम कर सकते, हम सब मिल सकते, अच्छा काम कर सकते, आत्मगौरव, ये है आत्मगौरव, आत्मगौरव, ये है आत्मगौरव, हम भी तो पढ़ सकते, हम भी तो लिख सकते, हम भी तो पढ़ सकते, हम भी तो लिख सकते, हम भी पढ़ा सकते, अच्छा काम कर सकते, हम भी पढ़ा सकते, अच्छा काम कर सकते, आत्मगौरव, ये है आत्मगौरव, आत्मगौरव, ये है आत्मगौरव। गरीबस पनुन हेस न थावा गरीबी छटस पे डोलिन जान Shri Janab Ramesh ji, respected Minister for Rural Development, Government of Jammu and Kashmir, Shri Ali Sagar Saab, my colleague Joint Secretary Mr. Santosh Matthew, Commissioner and Principal Secretary Rural Development, Peer Saab, other. Friends, I wish you a very good morning to all of you. My name is Suraya Niyaz and I am from Khanyar, District Srinagar. Today I am of Himayat program. बुजुर्ग सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बहुत खुशी हुई यहाँ बच्चों के और बच्चों के जो जज्बात थे, एहसासात थे इस प्रोग्राम के बारे में, जिस प्रोग्राम को आज मेरे ख्याल में दूसरी फंक्शन यहाँ है पामपुरा में, और आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में जयराम जी कोई 1100 नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। मुझे अगर आपको पूरी तरह याद होगा कि जो ही उमर अब्दुल्ला साहब ने ये हुकूमत संभाली, हालात बहुत ख़राब थे, गमगीर थे, लेकिन उन्होंने कोशिश की, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जो जम्मू कश्मीर में थी वो बेरोज़गारी थी। हमारे लाखों नौजवान बेरोज़गार थे और ये मुमकिन नहीं था कि लाखों नौजवानों को गवर्नमेंट नौकरी दी जा सकती है। और इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रुजू किया और प्राइम मिनिस्टर साहब के मशकूर है कि उन्होंने रंग राजन कमेटी बनाई जो उसके एडवाइज़र थे, और उन्होंने एक प्रोग्राम कार्व आउट किया जिसको हम हिमायत कहते हैं या जिसको हम उड़ान कहते हैं, जिसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वादा दिलाया कि 1 लाख जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अकोमोडेट किया जाएगा, उनको रोज़गार दिया जाएगा, उनमें स्किल डेवलपमेंट किया जाएगी। और उसके तहत लकीली और फॉर्चुनेटली जिस महकमे को ये जिम्मेदारी दी गई वो महकमा जयराम जी रमेश जी का है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और जिस ईमानदारी और दयानतदारी और डेडिकेशन के साथ इन्होंने इसमें हिस्सा ले लिया और इसमें पेन ले ली, इंटरेस्ट ले ली, उसके लिए हम मशकूर हैं। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जनाब उमर साहब ने भी पर्सनल का शुक्रिया अदा किया, और ये बार बार यहाँ आते हैं, इस प्रोग्राम को मॉनिटर करते हैं, इसको सुपरवाइज करते हैं, इसको रिव्यू करते हैं,
ताकि अगर कोई कमी खामी इसमें है इसको दूर करें। आज मैंने यहाँ सुना या बच्ची को सुना यहाँ कितने जज्बात थे इसके, किस तरह इसने दिखाया हिम्मत करे इंसान तो क्या चीज़ है नामुमकिन, तो इसने हिम्मत की और उसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। और इसी तरह हमारी ये कोशिश है, हमारे नौजवान कायद, हमारे नौजवान चीफ मिनिस्टर की कोशिश है कि जहाँ इन्होंने कहा कि हम आने वाले साल 1.5 साल में कोई 80,000 बच्चों को नौकरी देंगे, वहाँ हमारे 4 लाख बेरोजगार नौजवान बच्चे इस वक्त जो रजिस्टर हैं मुख्तलिफ जगह पर जिनकी रजिस्ट्रेशन है, और इतने हज़ारों की तादाद में यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में बच्चे पढ़ रहे हैं जो निकल रहे हैं, जो कल को जब डिग्रियां ख़त्म करेंगे बेरोजगार लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। और इस तरह उमर साहब ने स्किल डेवलपमेंट का इदारा यहाँ पेश किया, जो ये EDI की हम बात कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए। जैसे कि अभी हम बच्चे बात कर रहे थे, हमारे बहुत से पावर प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हमारे बहुत से कुछ और प्रोजेक्ट आ रहे हैं। जब कल के लिए हम उनके लिए आदमी ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास आदमी नहीं होते हैं, उनके पास वो टेक्निक्स नहीं होते हैं, उनके पास वो स्किल नहीं होता है, फिर दूसरे जगहों से लोग लाने पड़ते हैं। लिहाजा एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो हमारे चीफ मिनिस्टर ने दे दिया, जिस पे काम हो रहा है, जिसमें और इंशाल्लाह रहमान आने वाले वक्त में आप देखेंगे इसी तरह हजारों बच्चों और बच्चियों को रोजगार मिलेगा और जिनकी जो मायूसी हो वो खुशी में तब्दील हो जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं इस मौके पे जयराम जी का मशकूर हूँ कि न सिर्फ हिमायत बल्कि उड़ान बल्कि उम्मीद, जिसका आगाज हमारे नौजवान चीफ मिनिस्टर ने लास्ट से कर दिया परसों, उसके इफ्तिताह किया, उसकी इनॉग्रेशन की, उसकी शुरुआत की। और उम्मीद और हिमायत और उड़ान, ये तीनों स्कीमें एक खुशी की लहर यहाँ के नौजवानों में लाएंगी, बेरोजगार नौजवानों में, ताकि आने वाला कल उनको रोशन दिखे। हमें उम्मीद है कि जयराम जी ज़्यादा से ज़्यादा और सपोर्ट करें जम्मू कश्मीर के लोगों के और जम्मू कश्मीर की हुकूमत को, ताकि हमारी जो बेरोजगारी नौजवान में है वो दूर हो जाए। और वो दिन दूर नहीं है जब इंशाल्लाह रहमान वो दिन हम देखेंगे जब यहाँ के नौजवान सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं बल्कि अपने बलबूते पर काम करेंगे और अपनी जिंदगी बसर करेंगे। और मुझे खुशी है कि इस बार अभी तक ऑल इंडिया रेडियो की गाना अभी शुरू नहीं हुई, नहीं तो पिछले मरतबा हर समय 1 घंटे के बाद पीछे से गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। पहले साहब ने यहाँ एक बहुत अच्छा सा संस्था स्थापित किया है, JKEDI, और मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि ऐसे इंस्टीट्यूशन हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम दिखाई देते हैं। जो काम पानी साहब ने यहाँ करके दिखाया है, कितने भी हम उनकी प्रशंसा करें वो कम होगी। मैं हंसी में कह रहा था सुबह पानी साहब को कि मैं ओमर जी से गुजारिश करूंगा कि इस इलाके का नाम पारेपोरा रखा जाए और कितने कम समय में और कितने कम खर्चे में इन्होंने ये JKEDI की स्थापना की है। मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास रखता हूं कि ये JKEDI इस रियासत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब तक पिछले 15 महीनों में हिमायत से जम्मू और कश्मीर रियासत के करीब 5200 यानी कि 5200 लड़के और लड़कियों को ट्रेनिंग देकर रोजगार मिला है। इनमें से करीब 900 जम्मू और कश्मीर रियासत के बाहर काम कर रहे हैं, ज्यादातर चंडीगढ़ और दिल्ली में, परंतु ज्यादा से ज्यादा लोग लड़के और लड़कियां इसी रियासत में काम कर रही हैं। अब तक 5200 लड़कों और लड़कियों को ट्रेनिंग मिला है, रोजगार मिला है। और इस साल अगले 12 महीने में हमारा ये लक्ष्य है, हमारा ये मकसद है कि 15,000 लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग मिलकर रोजगार भी दिया जाएगा। यानी कि इस साल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण साल होगा। अगर हम इस साल कामयाब होंगे तो हिमायत कामयाब होगा। अगर इस साल हम नहीं किया तो मैं जानता हूं कि अगले 12 महीने हमारे लिए
मरकजी सरकार के लिए, हिमायत टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं मुख्यमंत्री जी और अली मोहम्मद सागर को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम पूरी लगान से काम करेंगे ताकि ये जो 15,000 का लक्ष्य हमने रखा क्या है। हिमायत में आपको सरकारी काम नहीं मिलता है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में नौजवान सिर्फ सरकारी काम के पीछे भाग रहे हैं और सरकार में अभी काम मिलना बिल्कुल असंभव हो गया है। तो इसीलिए हिमायत में ये जोर दिया जा रहा है नहीं मिलेगी, परंतु प्राइवेट कंपनियों में या सरकारी कंपनियों में आपको जरूर रोजगार मिलने की गुंजाइश। एक और बात मैं कह दूं कि ज्यादातर जम्मू और कश्मीर के जो माताएं हैं, पिताएं हैं, जो वो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे इसी रियासत में काम करें। ये वास्तविक मुझे कोई शिकायत नहीं है इस भावना से जब लोग आते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इसी रियासत में उनको आप काम दिलवाइए। हम पूरा कोशिश यही करेंगे, परंतु बाहर भी देखने की जरूरत। अभी अभी आपने देखा इतनी महिलाएं आई थी, आंध्र प्रदेश गई थी, उन्होंने क्या सीखा और उनमें एक नई जोश और नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। ये जो 900 नौजवान इस रियासत के आज बाहर काम कर रहे हैं, मैंने उनसे खूब बातचीत की है। चंडीगढ़ में 400 लड़के लड़कियां काम कर रही हैं। मैं एक दिन वहां गया था, राज्यपाल जी के साथ मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और वो बहुत खुश है। और एक लड़की जिसका नाम है रुबीना, वो बार बार मुझे कहती थी कि सर, जब मैंने हिमायत में पहली बार आई थी तब मैं चाहती थी कि मेरा काम सिर्फ इसी रियासत में हो, पर चंडीगढ़ आने के बाद मुझे लगा अभी मैं चंडीगढ़ आई हूँ, मेरा अगला काम दिल्ली में होना चाहिए और दिल्ली के बाद आप मुझे दुबई भेज सकें। तो ये एक नई जागृति आ रही है, एक नया नजरिया आ रहा है। वक्त लगेगा, पर हम जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें प्रयास करना है इसी रियासत में काम करने के। पर जहां सभी लोगों को इसी रियासत में काम नहीं मिल पाएगा, तब मैं ये गुजारिश करूंगा कि दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, अभी अभी आपने देखा एक नौजवान के पिता जो कैफे कॉफी डे भटिंडा में काम कर रहा है, पंजाब, ऐसे जगहों में भी आपको जाने के लिए तैयार होना चाहिए। हिमायत के साथ साथ मरकजी सरकार की ओर से उम्मीद एक नई कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और उम्मीद के तहत अगले 5 सालों में इस रियासत में करीब 90,000 महिला समूह बनाए जाएंगे। करीब 9 लाख महिलाएं इन समूहों के सदस्य बनेंगे। पहले साल में 4 ब्लॉक में हमने ये शुरू किया है, लाल गांधरबल में, खान साहब बडगाम में, बसौली कटवा में और चिनानी उधमपुर में। और यहाँ की महिलाएं यहाँ आई थी, नारा गाई और अपने उनका जो मकसद है इस समूह का आप लोगों को बताया है। उम्मीद हमारे लिए इतना ही महत्व रखता है जितना की हिमायत। यहाँ के सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और उस बेरोजगारी से निपटने के लिए हमने हिमायत की शुरुआत की है। और साथ साथ हम जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण की भी जरूरत है। हमारे समाज में कई ऐसे समस्याएं हैं जो सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं। और आज आपने एक महिला को सुना और मुझे खुशी है कि उन्होंने जो बात मैंने 4 दिन पहले कही थी उनको आज यहाँ आपके सामने उन्होंने दोहराया है। आज भी हमारे देश में सबसे बड़ा कलंक हमारे देश में
इस रियासत में और अलग अलग राज्यों में यही है कि 60% से भी ऊपर महिलाएं के लिए अभी कोई टॉयलेट या शौचालय उपलब्ध नहीं है। सागर साहब मरकज में जनाब जयराम रमेश साहब के साथ उनके जॉइंट सेक्रेटरी जनाब टी विजय कुमार साहब, जनाब संतोष मैथ्यू साहब, हमारे रियासती हुकूमत के रूरल डेवलपमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी जनाब फारूक अहमद पीर साहब, EDI के डायरेक्टर जनाब परे साहब, स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पे आए हुए तमाम अफसरान, मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स और आज हिमायत में हासिल करने वाले जॉब ऑर्डर्स के फंक्शन में हिस्सा लेने वाले नौजवानों, मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। मैं अक्सर शायरी नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे अल्फाज याद आते हैं जो मौके को बिल्कुल सूट कर जाते हैं, बिल्कुल टच कर जाते हैं। और उसमें यहाँ स्टेज पे बैठे मुझे अल्लामा इकबाल की एक बात याद आई, और आपने देखा होगा मैं फ़ोन पे क्या कर रहा था, मैं चेक कर रहा था कि जो मुझे याद आया क्या वो सही था या गलत था। अल्लामा इकबाल ने कहा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तब्दील से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और शायद इससे बेहतर कोई ऐसे अल्फाज नहीं है जो मैं इस फंक्शन में दोहराऊं, जिससे कि हम ये आपको बता सकें कि वाकई आपके हाथ में है। हमारा काम है मौका देना, हमारा काम है मौका फराहम करना, हमारा काम है आपके लिए खिड़की या दरवाजा खोलना, उसके बाद अंदर जाना और कामयाबी हासिल करना वो आपके हाथों में है। आप इस मौके को सही इस्तेमाल कर सकते हो या इस मौके को जाया कर सकते हो, ये आप तक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो मौका आपको दिया है, इस मुल्क में बहुत कम बच्चों को ऐसा मौका हासिल हुआ है। मेरे वक्त में ऐसा मौका नहीं था। जिन जिन कंपनियों में आप आज काम कर रहे हो या काम करने जा रहे हो, उन कंपनियों में काम करने के लिए सिफारिश की जरूरत होती थी, किसी को जानने की जरूरत होती थी, किसी MP को, किसी बड़े मिनिस्टर को, किसी और से फोन कराने की जरूरत पड़ती थी, तब शायद कहीं दरवाजा खुल जाता था, इंटरव्यू मिल जाता था। लेकिन इंटरव्यू के बाद ये जॉब ऑर्डर नसीब होना ना होना, उस पर भी शक रहता था। लेकिन आज हिमायत प्रोग्राम के तहत मरकज की जो इसमें हमें मदद हासिल है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि इस रियासत के दूर दराज इलाकों से लड़कों को, लड़कियों को लिया जा रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, और ट्रेनिंग के बाद आपको ये यकीन भी दिलाया जा रहा है कि आपको रोजगार दिया जाएगा। रोजगार के साथ साथ आपको मदद दी जाएगी। रोजगार के दौरान अगर आपको ट्रेनिंग की जरूरत होगी तो आपको वो ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप काम करते रहोगे आपकी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। अच्छा, आपको ये लालच देने के लिए भी कि आप उस काम में और ज्यादा जुड़े रहें और महीने महीने के बाद जो है काम छोड़े नहीं। यहाँ पे लैपटॉप और टैबलेट की बात हुई। अच्छा, जब जयराम रमेश साहब ने टैबलेट की बात की तो यहाँ से मुझे खामोशी सुनाई दी, किसी ने कुछ कहा नहीं। जैसे कि टैबलेट का मतलब है कोई क्रोसिन या पैरासीटामोल, और वो भी शायद नकली, क्योंकि हाल ही में ये भी सुनने में आया कि नकली दवाइयों का सिलसिला चलना शुरू हुआ। आप लोगों को लगा कि पता नहीं जयराम रमेश साहब आपको क्रोसिन या पैरासीटामोल की टैबलेट का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन अब ये जमाना टैबलेट का है। मेरे पास लैपटॉप भी है, मेरे पास टैबलेट भी है, लेकिन अगर आप मेरा ब्रीफ केस खोल के देखें,
लैपटॉप में इस्तेमाल करता ही नहीं। मेरा सारा काम जो है टैबलेट पे होता है। अगर आज मुझे कोई पूछे कि आपको टैबलेट चाहिए या लैपटॉप चाहिए, मैं तो लैपटॉप छोड़ के टैबलेट ही उठाना पसंद करूंगा। इसलिए मेहरबानी करके जयराम रमेश साहब जो आपको टैबलेट दे रहे हैं उसके लिए कम से कम शुक्रिया तो करेंगे। अगर आपको नहीं चाहिए वो टैबलेट मुझे दे दीजिए। मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो खुशी खुशी उस टैबलेट को पकड़ के इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। आप वैसे भी तनख्वाह कमाते हो, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी तनख्वाह से लैपटॉप खरीद लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। चलिए रही बात, अब आपको रीलोकेशन अलाउंस में और ज्यादा जो है चाहिए, हमने पहले ही बता दिया था। आपको शायद याद नहीं होगा क्योंकि उस वक्त आप स्कीम में आपने हिस्सा लिया नहीं था। हम 2 महीने के लिए महीने भर का 1,000 रुपए देते थे और वो हमें कम लगा। उसको बढ़ा के हमने 6 महीने कर दिया और हर महीने जो है 2,000 रुपए का रखा है। अगर महंगाई का हाल यही रहा तो मुमकिन है कि एक वक्त आएगा जब हमें इसको बढ़ाना होगा, लेकिन वो फैसला हम पे छोड़ दीजिए। हम ना हाँ कर रहे हैं ना इनकार कर रहे हैं। वो एक हमारे बहुत मशहूर प्रधानमंत्री थे जनाब पीवी नरसिम्हा राव, जो बहुत कम फैसले लिया करते थे और उन्होंने बहुत मशहूर एक वक्त कहा था, हिंदी में कहा था कि निर्णय ना लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है, और जबकि फैसला ना लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। तो चलिए, आज हम आपकी तालियों की गूंज जो है नहीं सुन पाएंगे। हम वो ताली जो है शायद आपसे आज हासिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम वो 3,000 रुपए का या 1 साल का हम ऐलान नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने नोट कर लिया है और हम आपसे बात करते रहेंगे, चाहे वो टैबलेट ईमेल के जरिए या बातचीत के जरिए या इन्हीं फंक्शनों के जरिए। और जिस दिन हमें लगा कि वाकई वो 2,000 रुपए 6 महीने के लिए आपके लिए काफी नहीं है, तो या तो मैं या जयराम रमेश साहब जो है अपने तरफ से ये ऐलान करके आपको सुना देंगे ताकि और ज्यादा हम आपके लिए जो है काम आसान करें। हम आपको नाकामयाब होते हुए नहीं देखना चाहते। मैं आप यकीन लेंगे, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं, आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। अगर आप आज रोजगार के ऑर्डर हमसे ले लेते हो और 2 महीने के बाद काम छोड़ के घर वापस आ जाते हो, न ये हमारी कामयाबी है, न ये जयराम साहब की कामयाबी है, न आपके ट्रेनरों की कामयाबी है। आपके घर वाले भी जो है वो खुश नहीं होंगे इस बात से। तो ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जयराम रमेश साहब और इनके अफसरों के साथ बैठ के हम इस पे गौर जरूर करेंगे। और अगर हमें लगा कि वाकई आपकी जो माली हालत है वो खराब है और ये 5,000 रुपए जो 6,000 रुपए जो आप तनख्वाह ले रहे हो, इसके साथ साथ 2,000 नहीं 3,000 रुपए देने की जरूरत है, तो मैं ये दावे से आपसे कह सकता हूँ कि जयराम रमेश साहब जो है इस रियासत के इतने बड़े दोस्त हैं। अगर हमने सही माने में इनसे ये बात की तो ये इनकार नहीं करेंगे। इन्होंने वैसे भी मुझे इजाजत दी है ऐलान करने की। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत भी ऐलान करे। ये मेरी माली हालत जो है अच्छी तरह से जानते हैं। ये जानते हैं कि अगर मैंने यहाँ से ऐलान किया तो कल को बिल भी मैं इन्हीं के पास भेज दूंगा और उस बिल पे दस्तखत भी इन्हीं को करना होगा। चलिए, यहाँ तक हम गाड़ी को आगे पहुंचा पाए कि पिछली बार इस रेट को या इस अलाउंस को हमने अक्टूबर में बदला था। वैसे भी इंक्रीमेंट्स आप जब काम करेंगे तो इंक्रीमेंट आपको सालाना इंक्रीमेंट मिल जाता है, प्रमोशन भी सालाना आपको प्रमोशन दी जाएगी। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि इस साल अक्टूबर में आपका ये जो रीलोकेशन अलाउंस है इसको और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ तक हम जाने के लिए तैयार हैं और मुझे नहीं लगता है इससे ज्यादा आपको उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग MLA मिनिस्टर वगैरह हमारी तनख्वाहें जो है तो 6-7 साल के बाद बढ़ जाती है। सरकारी जो मुलाजिम है उनका जो है पे कमीशन वो 10-10 साल के बाद बढ़ता है। अगर आप लोगों का अलाउंस 1 साल में बढ़ जाए तो मुझे लगता है ये आज जो आपने हिम्मत करके यहाँ तकरीरें की और उन तकरीरों के दौरान आपने जो डिमांड सामने रखे, ये उस चीज़ का जो है नतीजा है कि आपने मांगा, आपकी मांग हमने कबूल की और इंशाल्लाह अक्टूबर में हम आपकी मांग को जो है उसको एक्शन कर लेंगे।
मैं उन तमाम नौजवानों को मुबारक करना चाहता हूं जिन्होंने इस माइक का इस्तेमाल करके यहाँ पे तकरीर की। सर, एक्सक्यूज मी सर। नहीं, अब आप ठहरिए, अब मैं बोलूंगा उसके बाद आप बोलिए, ठीक है ना? सर, आई हैव अ क्वेश्चन। नहीं, अब आप बाद में करिए ना, तो मौका मेरा है। मैं तो यहाँ बड़ी खामोशी से बातों को सुनता आया, आप अब मुझे सुन लीजिए। चलिए ना, यही तो मुसीबत है। मैं उन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने इस माइक का इस्तेमाल किया और यहाँ पे तकरीरें की। आसान नहीं है यहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर लोगों के सामने तकरीर करना, और खासकर जो इन समूह से जुड़े हुए हमारी बहनें हैं, जो लार से आए, जो खान साहब से आए, जो उधमपुर से आई हैं, जो कठुआ से आई हैं, ये इनके लिए यहाँ पे आना, तकरीर करना, तकरीर के दौरान कुछ बातें और उसके बाद गाना गाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका ये जो इनकी जो स्कीम है, उम्मीद स्कीम, ये और ज़्यादा फले और ज़्यादा फूले। मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि हम ज़रूर इन्हें और ज़्यादा मदद करेंगे, इनको और ज़्यादा रियासतों में भेजने का काम करेंगे ताकि और रियासतों में जाइए, वहाँ के जो है हालात देखिए, वहाँ की महिलाओं से, वहाँ की बहनों से आप बात करें, उनसे कुछ सीखिए, उन्हें यहाँ बुलाइए। दोनों जम्मू कश्मीर में बहुत खूबसूरती है और मेहमान नवाजी का जो जज्बा हम में है, शायद ही किसी और रियासत में इतनी जो है मेहमान नवाजी का जज्बा है। तो ज़रूर मैं जयराम रमेश जी से यही कह रहा था कि आप आंध्रा गए हैं, यूपी भी आपने जाना है, और भी रियासतें हैं जहाँ पे ये वेमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो काम कर रही हैं। आप जाइए और वहाँ पे जो आपने सीखा है उनको बताइए, और जो उन्होंने सीखा है आप उनसे जो है सीख लीजिए। यहाँ जो बाकी नौजवान हैं उनसे मेरी मोहतबाना गुजारिश है कि आप जब अपने घर वापस जाएं तो और ज़्यादा बच्चियों को हिमायत और उड़ान के स्कीम के साथ जोड़ने का काम कीजिए। मैं जानता हूँ आपके पड़ोस में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सरकारी मुलाजमत का इंतजार कर रहे होंगे, जो आपसे कह रहे होंगे कि ये हिमायत जो है, ये उड़ान जो है, ये पागलपन है, ये वक्त ज़ाया करना है। बेहतर है कि बैठो और सरकारी मुलाजमत के लिए इंतजार करो, क्योंकि सरकारी मुलाजमत में तनख्वाह ठीक है, काम कम है, और काम के बाद जो है अच्छा खासा पेंशन वगैरह मिल जाता है, तो प्राइवेट सेक्टर में जाने की ज़रूरत नहीं। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर मैं उस जगह होता जहां मैं इस रियासत के हर नौजवान को सरकारी मुलाजमत का वादा कर सकता, तो मैं जयराम रमेश जी से कहता कि हमें ना हिमायत की ज़रूरत है, हमें ना उड़ान की ज़रूरत है, हम सरकारी मुलाजमत पे ही जो है बेरोज़गारी का खात्मा करेंगे। लेकिन सरकारी मुलाजमत में बेरोज़गारी का खात्मा नहीं लिखा है। काश लिखा होता, काश इस रियासत की माली हालत ऐसी होती कि मैं हर नौजवान को सरकारी मुलाजमत दे पाता। आप थक गए होंगे मुझसे आप ये सुनते सुनते मेरा ये कहना कि हम कितने मतलब पानी में हैं। यकीन करेंगे कि सारा टैक्स, VAT वगैरह लगाने के बाद इस रियासत की कुल कमाई जो है वो लगभग 6,500 करोड़ है। 6,500 करोड़। सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह आज 13,500 करोड़ है। 13,500 करोड़ तनख्वाह, 6,500 करोड़ कमाई। अब खुदारा मुझे बताइए कहाँ तक हम जाएं सरकारी मुलाजमत पैदा करने? क्या हमें सारा पैसा जो है मुलाजमत में लगाना है? क्या बिजली, पानी, सड़क, सेहत, तालीम, इन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है? और इसलिए मैंने बार बार कहा है कि जहाँ तक हो सकेगा हम सरकारी मुलाजमत जो है उसके साधन तैयार करेंगे। हमने हाल ही में असेंबली में ऐलान किया था कि लगभग अगले 1.5-2 साल में हम 70,000 के करीब जो है नए जो है सरकारी पोस्ट जो है वो कायम कर रहे हैं। वो SSRB के तहत, पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत, बाकी जो है रूट से जो है भरे जाएंगे। लेकिन आज भी इस रियासत में जो रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड यूथ की तादाद है वो 4 लाख से ज्यादा है। तो इन 70,000 को लगाने के बाद भी 3 लाख से ज्यादा नौजवान जो है सरकारी मुलाजमत में नहीं होंगे। उनके लिए मुलाजमत के और रास्ते खोलने हैं। उन्हें सरकारी मुलाजमत के अलावा और तरीकों से कमाने की जो है हमें तैयार करना होगा।
और जिस नौजवान को आज साल 2 साल के अंदर अंदर 10,000 रुपए कमाने का मौका हासिल हो रहा है, ये कोई माहौल नहीं है। हमारे कुछ लोग रहबर तालीम के तहत आज टीचर बने हुए हैं, तालीम फरहम कर रहे हैं, वो 3,000 रुपए कमाते हैं। 7 साल 8 साल वो तालीम फरहम करेंगे, 3-3,500 रुपए कमाएंगे। मेरे SPOs वर्दी लगाए हुए, बंदूक पकड़े हुए पहाड़ों पे जो है काम कर रहे हैं, आज उनकी तनख्वाह जो है 3,500 रुपए है। घर से दूर पहाड़ों के ऊपर मुश्किल हालात में वो काम कर रहे हैं, लेकिन अपना वो जो है काम कर रहे हैं और 3,500 रुपए कमा रहे हैं। आप लोग तो 1 साल के अंदर अंदर यहाँ श्रीनगर शहर में काम करते हुए कैफे कॉफी डे में 5,500 रुपए कमा रहे हो, प्रमोशन हो जाएगा तो 7,500 रुपए कमाना शुरू कर जाओगे। बड़ी अच्छी बात है और यही आपको पहचानना चाहिए। इसके लिए चलिए आप हमारा शुक्रिया ना करें, अल्लाह ताला का शुक्रिया करें कि आपको ये मौका फराहम हुआ है कि आप उस बेबसी से, उस गुस्से से, क्योंकि मैं समझता हूँ आपका गुस्सा, तालीम हासिल करने के बाद जब आप रोजगार हासिल नहीं करते हो तो गुस्सा आता है, जाहिर सी बात है। और आपको ये मौका मिला है और इसलिए जिस चीज से मैंने शुरुआत की उसी बात पे मैं खत्म करता हूँ कि मेहरबानी करके इस मौके को पहचानिए। जो नौजवान मुझसे सवाल पूछना चाहता था वो सवाल मेरे पास पहुंच चुका है। ये मुझसे पूछना चाहता था कि जो नौजवान इस रियासत से बाहर जाते हैं उनका क्या हाल होता है, और ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। इनका सवाल जो है बिल्कुल जायज है और इसका जवाब वक्तन फवक्तन हासिल करना और आपको देना मेरा फर्ज बनता है। मेरा फर्ज बनता है, जयराम रमेश जी का फर्ज बनता है कि जिस बाशिंदे को हम इस रियासत के बाहर भेजें कमाई करने के लिए, उनकी वहाँ पे इज्जत हो, उनकी वहाँ पे सिक्योरिटी हो, उनके साथ किसी तरह का छेड़छाड़ ना हो, उनको किसी तरह से कोई तंग ना करे। ये मेरा फर्ज है, ये मेरा काम है, ये जयराम रमेश जी का काम है। बीच में मुझे मालूम है वक्तन फवक्तन कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे कि हम परेशान हुए, चाहे हाल ही में हैदराबाद में जिस लड़के ने खुदकुशी की, अब वो दूसरी बात है कि उसको किस तरह यहाँ पे पेश किया गया वो एक अलग अंदाज है। जिस तरह पिछले दिनों बेंगलोर में कुछ कश्मीरी लड़कों और कुछ बिहारी लड़कों के दरमियान हाथापाई हुई, उसमें भी कार्रवाई हुई। मैं हर जो मीटिंग हमारी होती है दिल्ली में, जिसमें मेरे साथी चीफ मिनिस्टर उसमें होते हैं, जिसमें होम मिनिस्टर होता है, जिसमें मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, मैं बार बार ये बात इनके सामने दोहराता हूँ कि हर कश्मीरी को शक के नजरिए से मत देखिए। हर कश्मीरी जो है इस रियासत के या इस मुल्क की कमाई के लिए नहीं आया है। हर कश्मीरी जो है अपने खैरन के नीचे बंदूक लेके नहीं घूम रहा है। हर सेब की पेटी में ग्रेनेड छुपे हुए नहीं है। यहाँ अक्सर बेशतर मैं कहता हूँ 100% जो है, चले 100% में से अगर 0.001% आप निकालो उन लोगों के लिए जिनके इरादे सही नहीं है। बाकी तमाम कश्मीर के नौजवान बुजुर्ग जब इस रियासत से बाहर जाते हैं तो इज्जत की कमाई करने के लिए जाते हैं, इस रियासत के फायदे के लिए जाते हैं, अपने घर के फायदे के लिए जाते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कहीं पे भी कोई ऐसी शिकायत हमारे सामने आए जहाँ पे भी किसी कश्मीरी के साथ गलत जो है सलूक किया गया होगा, हम उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। चाहे वो मरकज़ के साथ हमें बात करने की ज़रूरत पड़े, चाहे हमें उस रियासत की हुकूमत के साथ बात करने की ज़रूरत पड़े। ये आप यकीन ले लीजिए कि अगर आप इस रियासत से बाहर काम करने जाओगे, हम किसी के साथ किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो आपसे छेड़छाड़ करें या आपको किसी तरह की जो है मुश्किलात जो है आपके सामने रखें। आप हिम्मत करिए, रास्ता आसान नहीं है, मैं समझता हूँ। आप हिम्मत करिए, हम आपके साथ हैं। जयराम रमेश जी आपके साथ हैं, मेरे साथी जो हैं आपके साथ हैं। हम आपको कामयाब होते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। आप न सिर्फ अपना नाम रोशन करोगे, न अपने घर वालों का, इंशाल्लाह आप इस रियासत का नाम रोशन करके एक खुशहाल जम्मू कश्मीर जो है हम सब के लिए पैदा करोगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। By and large, it's fine, but it's just the incidents are not related to different organizations.
of which 420 have been working for more than under Himayat and got placement offers through different organizations. I would request the Honorable Chief Guest Sri Janam Ramesh Ji to listen, beginning with Ms. Saida Shabina. Then we have Kausar Mansoor of our Job in Kisna Dwellers. Then we have Mushtaq Ahmed Baba, Meerut Mir San. Then we have Imtiaz Yusuf of our Job in Aegis Srinagar. Then we have Asifa Mehraj of our Job in Hotel Batra. Then we have Ubad Hussain of our Job in Hotel June. Junaid Ahmed of our Job in Elisa Biotech. Then Shazia Dur of our Job in Aegis Srinagar. Then we have Adil Yusuf of our Job in City Line. Then Muzammil Waqi of our Job in Noor Hospital. Then we have Irfan Ahmed of our Job in CCD Baroda. Then Muhammad Yunus Bhatt, Bismillah Engineering. Suraya. Then we have Suraya Niyaz of our Apollo Clinic. की तरफ से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर अल्लाह का शुक्रिया, जनरल जी का शुक्रिया। खुदा आपको सलामत रखे। अल्लाह निगहबान। सागर साहब मरकज में जनाब जयराम रमेश साहब के साथ उनके जॉइंट सेक्रेटरी जनाब टी विजय कुमार साहब, जनाब संतोष मैथ्यू साहब, हमारे रियासती हुकूमत के रूरल डेवलपमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी जनाब फारूक अहमद पीर साहब, EDI के डायरेक्टर जनाब परे साहब, स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पे आए हुए तमाम अफसरान, मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स और आज हिमायत में हासिल करने वाले जॉब ऑर्डर्स के फंक्शन में हिस्सा लेने वाले नौजवानों, मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। मैं अक्सर शायरी नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे अल्फाज याद आते हैं जो मौके को बिल्कुल सूट कर जाते हैं, बिल्कुल टच कर जाते हैं। और उसमें यहाँ स्टेज पे बैठे मुझे अल्लामा इकबाल की एक बात याद आई, और आपने देखा होगा मैं फ़ोन पे क्या कर रहा था, मैं चेक कर रहा था कि जो मुझे याद आया क्या वो सही था या गलत था। अल्लामा इकबाल ने कहा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। और शायद इससे बेहतर कोई ऐसे अल्फाज नहीं हैं जो मैं इस फंक्शन में दोहराऊं, जिससे कि हम ये आपको बता सकें कि वाकई आपके हाथ में है। हमारा काम है मौका देना, हमारा काम है मौका फराहम करना, हमारा काम है आपके लिए खिड़की या दरवाज़ा खोलना, उसके बाद अंदर जाना और कामयाबी हासिल करना वो आपके हाथों में है। आप इस मौके को सही इस्तेमाल कर सकते हो या इस मौके को ज़ाया कर सकते हो, ये आप तक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो मौका आपको दिया है, इस मुल्क में बहुत कम बच्चों को ऐसा मौका हासिल हुआ है। मेरे वक्त में ऐसा मौका नहीं था। जिन जिन कंपनियों में आप आज काम कर रहे हो या काम करने जा रहे हो, उन कंपनियों में काम करने के लिए सिफारिश की जरूरत होती थी, किसी को जानने की जरूरत होती थी, किसी MP को, किसी बड़े मिनिस्टर को, किसी और से फोन कराने की जरूरत पड़ती थी, तब शायद कहीं दरवाजा खुल जाता था, इंटरव्यू मिल जाता था। लेकिन इंटरव्यू के बाद ये जॉब ऑर्डर नसीब होना ना होना, उस पर भी शक रहता था। लेकिन आज हिमायत प्रोग्राम के तहत मरकज की जो इसमें
हमें मदद हासिल है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि इस रियासत के दूर दराज इलाकों से लड़कों को लड़कियों को लिया जा रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेनिंग के बाद आपको ये यकीन भी दिलाया जा रहा है कि आपको रोजगार दिया जाएगा। रोजगार के साथ साथ आपको मदद दी जाएगी। रोजगार के दौरान अगर आपको ट्रेनिंग की जरूरत होगी तो आपको वो ट्रेनिंग भी दी जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप काम करते रहोगे आपकी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। अच्छा, आपको ये लालच देने के लिए भी कि आप उस काम में और ज्यादा जुड़े रहें और महीने महीने के बाद जो है काम छोड़े नहीं। यहाँ पे लैपटॉप और टैबलेट की बात हुई। अच्छा, जब जयराम रमेश साहब ने टैबलेट की बात की तो यहाँ से मुझे खामोशी सुनाई दी, किसी ने कुछ कहा नहीं। जैसे कि टैबलेट का मतलब है कोई क्रोसिन या पैरासीटामोल, और वो भी शायद नकली, क्योंकि हाल ही में ये भी सुनने में आया कि नकली दवाइयों का सिलसिला चलना शुरू हुआ। आप लोगों को लगा कि पता नहीं जयराम रमेश साहब आपको क्रोसिन या पैरासीटामोल की टैबलेट का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन अब ये जमाना टैबलेट का है। मेरे पास लैपटॉप भी है, मेरे पास टैबलेट भी है, लेकिन अगर आप मेरा ब्रीफ केस खोल के देखें, लैपटॉप में इस्तेमाल करता ही नहीं। मेरा सारा काम जो है टैबलेट पे होता है। अगर आज मुझे कोई पूछे कि आपको टैबलेट चाहिए या लैपटॉप चाहिए, मैं तो लैपटॉप छोड़ के टैबलेट ही उठाना पसंद करूंगा। इसलिए मेहरबानी करके जयराम रमेश साहब जो आपको टैबलेट दे रहे हैं उसके लिए कम से कम शुक्रिया तो करें। अगर आपको नहीं चाहिए वो टैबलेट, मुझे दे दीजिए। मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो खुशी खुशी उस टैबलेट को पकड़ के इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। आप वैसे भी तनख्वाह कमाते हो, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी तनख्वाह से लैपटॉप खरीद लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। चलिए, रही बात अब आपको रीलोकेशन अलाउंस में और ज्यादा जो है चाहिए, हमने पहले ही बता दिया था। आपको शायद याद नहीं होगा क्योंकि उस वक्त आप स्कीम में आपने हिस्सा लिया नहीं था। हम 2 महीने के लिए महीने भर का 1-1 हज़ार रुपए देते थे और वो हमें कम लगा। उसको बढ़ा के हमने 6 महीने कर दिया और हर महीने जो है 2-2 हज़ार रुपए का रखा है। अगर महंगाई का हाल यही रहा तो मुमकिन है कि एक वक्त आएगा जब हमें इसको बढ़ाना होगा, लेकिन वो फैसला हम पे छोड़ दीजिए। हम ना हाँ कर रहे ना इनकार कर रहे। वो एक हमारे बहुत मशहूर प्रधानमंत्री थे जनाब पीवी नरसिम्हा राव, जो बहुत कम फैसले लिया करते थे और उन्होंने बहुत मशहूर एक वक्त कहा था, हिंदी में कहा था कि निर्णय ना लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है, और जबकि फैसला ना लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। तो चलिए, आज हम आपकी तालियों की गूंज जो है नहीं सुन पाएंगे। हम वो ताली जो है शायद आपसे आज हासिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम वो 3 हज़ार रुपए का या 1 साल का हम ऐलान नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने नोट कर लिया है और हम आपसे बात करते रहेंगे, चाहे वो टैबलेट ईमेल के जरिए या बातचीत के जरिए या इन्हीं फंक्शनों के जरिए। और जिस दिन हमें लगा कि वाकई वो 2,000 रुपए 6 महीने के लिए आपके लिए काफी नहीं है, तो या तो मैं या जयराम रमेश साहब जो है अपने तरफ से ये ऐलान करके आपको सुना देंगे ताकि और ज्यादा हम आपके लिए जो है काम आसान करें। हम आपको नाकामयाब होते हुए नहीं देखना चाहते। मैं आप यकीन ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। अगर आप आज रोजगार के ऑर्डर हमसे ले लेते हो और 2 महीने के बाद काम छोड़ के घर वापस आ जाते हो, न ये हमारी कामयाबी है, न ये जयराम साहब की कामयाबी है, न आपके ट्रेनरों की कामयाबी है। आपके घर वाले भी जो है वो खुश नहीं होंगे इस बात से। तो ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जयराम रमेश साहब और इनके अफसरों के साथ बैठ के हम इस पर गौर जरूर करेंगे और अगर हमें लगा कि वाकई आपकी जो माली हालत है वो खराब है और ये 5,000 रुपए जो 6,000 रुपए जो आप तनख्वाह ले रहे हो, इसके साथ साथ 2,000 नहीं 3,000 रुपए देने की जरूरत है, तो मैं ये दावे से आपसे कह सकता हूँ कि जयराम रमेश साहब जो है इस रियासत के इतने बड़े दोस्त हैं। अगर हमने सही माने में इनसे ये बात की तो ये इनकार नहीं करेंगे। इन्होंने वैसे भी मुझे इजाजत दी है ऐलान करने की। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत भी ऐलान करे। ये मेरी माली हालत जो है अच्छी तरह से जानते हैं। ये जानते हैं कि अगर मैंने यहाँ से ऐलान किया तो कल को बिल भी मैं इन्हीं के पास भेज दूंगा और उस बिल पे दस्तखत भी इन्हीं को करना होगा।
चलिए, यहाँ तक हम गाड़ी को आगे पहुंचा पाए कि पिछली बार इस रेट को या इस अलाउंस को हमने अक्टूबर में बदला था। वैसे भी इंक्रीमेंट्स आप जब काम करेंगे तो इंक्रीमेंट आपको सालाना इंक्रीमेंट मिल जाता है, प्रमोशन भी सालाना आपको प्रमोशन दी जाएगी। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि इस साल अक्टूबर में आपका ये जो रिलोकेशन अलाउंस है इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ तक हम जाने के लिए तैयार हैं और मुझे नहीं लगता है इससे ज़्यादा आपको उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग MLA मिनिस्टर वगैरह हमारी तनख्वाहें जो है तो 6-7 साल के बाद बढ़ जाती है। सरकारी जो मुलाजिम है उनका जो है पे कमीशन वो 10-10 साल के बाद बढ़ता है। अगर आप लोगों का अलाउंस 1 साल में बढ़ जाए तो मुझे लगता है ये आज जो आपने हिम्मत करके यहाँ तकरीरें की और उन तकरीरों के दौरान आपने जो डिमांड सामने रखे, ये उस चीज़ का जो है नतीजा है कि आपने मांगा, आपकी मांग हमने कबूल की और इंशाल्लाह अक्टूबर में हम आपकी मांग को जो है उसको एक्शन करने में। मैं उन तमाम नौजवानों को मुबारक करना चाहता हूं जिन्होंने इस माइक का इस्तेमाल करके यहाँ पे तकरीर की। सर, एक्सक्यूज मी सर। नहीं, अब आप ठहरिए, अब मैं बोलूंगा उसके बाद आप बोलिए, ठीक है ना? सर, नहीं, अब आप तो बाद में करिए ना, तो मौका मेरा है। मैं तो यहाँ बड़ी खामोशी से बातों को सुनता आया, आप अब मुझे सुन लीजिए। चलिए ना, यही तो मुसीबत है। मैं उन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने इस माइक का इस्तेमाल किया और यहाँ पे तकरीरें की। आसान नहीं है यहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर लोगों के सामने तकरीर करना, और खासकर जो इन समूह से जुड़े हुए हमारी बहनें हैं, जो लार से आए, जो खान साहब से आए, जो उधमपुर से आई हैं, जो कठुआ से आई हैं, ये इनके लिए यहाँ पे आना, तकरीर करना, तकरीर के दौरान कुछ बातें और उसके बाद गाना गाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका ये जो इनकी जो स्कीम है, उम्मीद स्कीम, ये और ज़्यादा फले और ज़्यादा फूले। मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि हम ज़रूर इन्हें और ज़्यादा मदद करेंगे, इनको और ज़्यादा रियासतों में भेजने का काम करेंगे ताकि और रियासतों में जाइए, वहाँ के जो है हालात देखिए, वहाँ की महिलाओं से, वहाँ की बहनों से आप बात करें, उनसे कुछ सीखिए, उन्हें यहाँ बुलाइए। दोनों जम्मू कश्मीर में बहुत खूबसूरती है और मेहमान नवाजी का जो जज्बा हम में है, शायद ही किसी और रियासत में इतनी जो है मेहमान नवाजी का जज्बा है। तो ज़रूर मैं जयराम रमेश जी से यही कह रहा था कि आप आंध्रा गए हैं, यूपी भी आपने जाना है, और भी रियासतें हैं जहाँ पे ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो काम कर रही हैं। आप जाइए और वहाँ पे जो आपने सीखा है उनको बताइए, और जो उन्होंने सीखा है आप उनसे जो है सीख लीजिए। यहाँ जो बाकी नौजवान हैं उनसे मेरी मोहतबाना गुजारिश है कि आप जब अपने घर वापस जाएं तो और ज़्यादा बच्चियों को हिमायत और उड़ान के स्कीम के साथ जोड़ने का काम कीजिए। मैं जानता हूँ आपके पड़ोस में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सरकारी मुलाजमत का इंतजार कर रहे होंगे, जो आपसे कह रहे होंगे कि ये हिमायत जो है, ये उड़ान जो है, ये पागलपन है, ये वक्त ज़ाया करना है। बेहतर है कि बैठो और सरकारी मुलाजमत के लिए इंतज़ार करो, क्योंकि सरकारी मुलाजमत में तनख्वाह ठीक है, काम कम है और काम के बाद जो है अच्छा खासा पेंशन वगैरह मिल जाता है, तो प्राइवेट सेक्टर में जाने की ज़रूरत नहीं। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर मैं उस जगह होता जहां मैं इस रियासत के हर नौजवान को सरकारी मुलाजमत का वादा कर सकता, तो मैं जयराम रमेश जी से कहता कि हमें ना हिमायत की ज़रूरत है, हमें ना कुरान की ज़रूरत है, हम सरकारी मुलाजमत पे ही जो है बेरोज़गारी का खात्मा करेंगे। लेकिन सरकारी मुलाजमत में बेरोज़गारी का खात्मा नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। काश लिखा होता, काश इस रियासत की माली हालत ऐसी होती कि मैं हर नौजवान को सरकारी मुलाजमत दे पाता। आप थक गए होंगे मुझसे ये आप ये सुनते सुनते मेरा ये कहना कि हम कितने मतलब पानी में हैं। यकीन करेंगे कि सारा टैक्स, VAT वगैरह लगाने के बाद इस रियासत की कुल कमाई जो है वो लगभग 6,500 करोड़ है। 6,500 करोड़। सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह आज 13,500 करोड़ है। 13,500 करोड़ तनख्वाह, 6,500 करोड़ कमाई। आप खुदारा मुझे बताइए कहाँ तक हम जाएं सरकारी मुलाजमत पैदा करने में? क्या हमें सारा पैसा जो है मुलाजमत में लगाना है?
क्या बिजली, पानी, सड़क, सेहत, तालीम, इन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है? और इसलिए मैंने बार बार कहा है कि जहाँ तक हो सकेगा हम सरकारी मुलाजमत जो है उसके साधन तैयार करेंगे। हमने हाल ही में असेंबली में ऐलान किया था कि लगभग अगले 1.5-2 साल में हम 70,000 के करीब जो है नए जो है सरकारी पोस्ट जो है वो कायम कर रहे हैं। वो SSRB के तहत, पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत बाकी जो है रूट से जो है भरे जाएंगे। लेकिन आज भी इस रियासत में जो रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड यूथ की तादाद है वो 4 लाख से ज्यादा है। तो इन 70,000 को लगाने के बाद भी 3 लाख से ज्यादा नौजवान जो है सरकारी मुलाजमत में नहीं होंगे। उनके लिए मुलाजमत के और रास्ते खोलने हैं। उन्हें सरकारी मुलाजमत के अलावा और तरीकों से कमाने की जो है हमें तैयार करना होगा। और जिस नौजवान को आज साल 2 साल के अंदर अंदर 10,000 रुपए कमाने का मौका हासिल हो रहा है, ये कोई माहौल नहीं है। हमारे कुछ लोग रहबर तालीम के तहत आज टीचर बने हुए हैं, तालीम फराहम कर रहे हैं, वो 3,000 रुपए कमाते हैं। 7 साल 8 साल वो तालीम फराहम करेंगे, 3-3,500 रुपए कमाएंगे। मेरे SPOs वर्दी लगाए हुए, बंदूक पकड़े हुए पहाड़ों पे जो है काम कर रहे हैं, आज उनकी तनख्वाह जो है 3,500 रुपए है। घर से दूर पहाड़ों के ऊपर मुश्किल हालात में वो काम कर रहे हैं, लेकिन अपना वो जो है काम कर रहे हैं और 3,500 रुपए कमा रहे हैं। आप लोग तो 1 साल के अंदर अंदर यहाँ श्रीनगर शहर में काम करते हुए कैफे कॉफी डे में 5,500 रुपए कमा रहे हो। प्रमोशन हो जाएगा तो 7,500 रुपए कमाना शुरू कर जाओगे। बड़ी अच्छी बात है और यही आपको पहचानना चाहिए। इसके लिए चलिए आप हमारा शुक्रिया ना करें, अल्लाह ताला का शुक्रिया करें कि आपको ये मौका फराहम हुआ है कि आप उस बेबसी से, उस गुस्से से, क्योंकि मैं समझता हूँ आपका गुस्सा, तालीम हासिल करने के बाद जब आप रोजगार हासिल नहीं करते हो तो गुस्सा आता है, जाहिर सी बात है। और आपको ये मौका मिला है और इसलिए जिस चीज से मैंने शुरुआत की उसी बात पर मैं खत्म करता हूँ कि मेहरबानी करके इस मौके को पहचानिए। जो नौजवान मुझसे सवाल पूछना चाहता था वो सवाल मेरे पास पहुंच चुका है। ये मुझसे पूछना चाहता था कि जो नौजवान इस रियासत से बाहर जाते हैं उनका क्या हाल होता है, और ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। इनका सवाल जो है बिल्कुल जायज है और इसका जवाब वक्तन फवक्तन हासिल करना और आपको देना मेरा फर्ज बनता है। मेरा फर्ज बनता है, जयराम रमेश जी का फर्ज बनता है कि जिस बाशिंदे को हम इस रियासत के बाहर भेजें कमाई करने के लिए, उनकी वहाँ पे इज्जत हो, उनकी वहाँ पे सिक्योरिटी हो, उनके साथ किसी तरह का छेड़छाड़ ना हो, उनको किसी तरह से कोई तंग ना करे। ये मेरा फर्ज है, ये मेरा काम है, ये जयराम रमेश जी का काम है। बीच में मुझे मालूम है वक्तन फवक्तन कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे कि हम परेशान हुए। चाहे हाल ही में हैदराबाद में जिस लड़के ने खुदकुशी की, अब वो दूसरी बात है कि उसको किस तरह यहाँ पे पेश किया गया, वो एक अलग अंदाज है। जिस तरह पिछले दिनों बेंगलोर में कुछ कश्मीरी लड़कों और कुछ बिहारी लड़कों के दरमियान हाथापाई हुई, उसमें भी कार्रवाई हुई। मैं हर जो मीटिंग हमारी होती है दिल्ली में, जिसमें मेरे साथी चीफ मिनिस्टर उसमें होते हैं, जिसमें होम मिनिस्टर होता है, जिसमें मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, मैं बार बार ये बात इनके सामने दोहराता हूँ कि हर कश्मीरी को शक के नजरिए से मत देखिए। हर कश्मीरी जो है इस रियासत के या इस मुल्क की कमाई के लिए नहीं आया है। हर कश्मीरी जो है अपने खैरन के नीचे बंदूक लेके नहीं घूम रहा है। हर सेब की पेटी में ग्रेनेड छुपे हुए नहीं है। यहाँ अक्सर बेशतर मैं कहता हूँ 100% जो है, चले 100% में से अगर 0.001% आप निकालो उन लोगों के लिए जिनके इरादे सही नहीं है। बाकी तमाम कश्मीर के नौजवान बुजुर्ग जब इस रियासत से बाहर जाते हैं तो इज्जत की कमाई करने के लिए जाते हैं, इस रियासत के फायदे के लिए जाते हैं, अपने घर के फायदे के लिए जाते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कहीं पे भी कोई ऐसी शिकायत हमारे सामने आए
जहां पे भी किसी कश्मीरी के साथ गलत जो है सलूक किया गया होगा, हम उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। चाहे वो मरकज के साथ हमें बात करने की जरूरत पड़े, चाहे हमें उस रियासत की हुकूमत के साथ बात करने की जरूरत पड़े। ये आप यकीन ले लीजिए कि अगर आप इस रियासत से बाहर काम करने जाओगे, हम किसी के साथ किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि वो आपसे छेड़छाड़ करें या आपको किसी तरह की जो है मुश्किलात जो है आपके सामने रखें। आप हिम्मत करिए, रास्ता आसान नहीं है, मैं समझता हूँ। आप हिम्मत करिए, हम आपके साथ हैं। जयराम रमेश जी आपके साथ हैं, मेरे साथी जो हैं आपके साथ हैं। हम आपको कामयाब होते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। आप न सिर्फ अपना नाम रोशन करोगे, न अपने घर वालों का, इंशाल्लाह आप इस रियासत का नाम रोशन करके एक खुशहाल जम्मू कश्मीर जो है हम सब के लिए पैदा करोगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। By and large, it's fine. It's just the So incidents are not 1,370 different organizations, of which 420 have been working for more than under Himayat and got placement offers from different organizations. I would request the Honorable Chief Guest, Sri Janam Ramesh Ji, to listen, beginning with Ms. Saida Shabina. Then we have Kamsar Mansoor of our Jobin Kisna Dwellers. Then we have Mushtaq Ahmed Baba, Meerut Meersan. Then we have Imtiaz Yusuf of our Jobin Aegis Srinagar. Then we have Asifa Mehraj of our Jobin Hotel Batra. Then we have Ubad Hussain of our Jobin Hotel June. Junaid Ahmed of our Jobin Elisa Biotech. Then Shazia Dur of our Jobin Aegis Srinagar. Then we have Adil Yusuf of our Jobin Cityline. Then Muzammil Waqi of our Jobin